my children. How are you all children? All are fine? Staying indoors? Yes, you should stay indoors. Take care of yourself. Children, you are welcome to our civics class. In the previous sessions, you heard about the agitation which was started by the people against the affair of the governments. Means the common man, the public, agitated against the government because the policy which was implemented that was not for the welfare of the people. Whatever might be the reason, but the people revolted. And at that same time, children, the opposition supported the revolutionaries. Of course, it was a good opportunity for them. So that in that way, they were able to criticize the affairs of the government. So this agitation, this protest was related to political field. But children, you should be very clear that it's not only that people can agitate against the government only which matter relates to the political field. No children, wherever our fundamental rights are violated, we have got the right to protest against the authority. Because our fundamental rights are guaranteed to us by the Constitution, and the Supreme Court is the authority who defends our fundamental rights. Of course, children, that also is true that there can be circumstances where our fundamental rights are suspended. There will be. That also is a process given by the Constitution. But there are certain rules for it. Otherwise, in normal time, when everything is fine, our rights cannot be violated. So there are other fields where the people can protest against the government. It can be the rights or the protest can be related to social field. That also, of course, in the, in the previous, when we were slaves, there were affairs related to the society where the people agitated so that the people may get rid from the evils prevailing in the society. So with this, today we are going to start our topic, Rise of Popular Movements. In this, children, you will see something different for which the people revolted. आज के सेशन में हम जन आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे जहां केवल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आंदोलन नहीं किए गए बल्कि ऐसे अन्य संदर्भ भी थे जिसका रिलेशन सीधे मनुष्य के शोषण से था, जहां हमारे अधिकारों का वायोलेशन हो रहा था, हमारे अधिकार हमें नहीं मिल रहे थे, या ऐसे कुछ नियम थे या पॉलिसीज थी जहां हमारे अधिकारों का हनन हो रहा था। इस परिप्रेक्ष्य में किस तरह के आंदोलन चलाए गए, उन आंदोलनों के द्वारा किसे राहत मिली, सरकार ने नियमों में क्या परिवर्तन किया, इस टॉपिक के अंडर में आप सुनेंगे। सो टुडे वी स्टार्ट अ चैप्टर, न्यू चैप्टर. The first point is nature of popular movements. Our first point is nature of popular movements. Our first point is nature of popular movements. जन आंदोलनों की प्रकृति. Children, you heard about Green Revolution. There was a chapter which you have read previously. The chapter was Politics of Planned Development. आपने पीछे एक चैप्टर में पढ़ा था जहां हरित क्रांति के बारे में वर्णन किया था. Do you remember? So that was related, of course, to the environment,
or you can say to keep the environment green. So we'll see today there will be a point which relates to the trees. Okay. So for this, children, you just have a look at the figure which is drawn at the starting of the chapter. Please look at it. Got? Okay. Children, by looking at it, what do you feel? Just think, what do you feel by looking at it? Is it a game? Can be, children. But it is for kids. आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में अगर आप देखिए, उसमें एक पिक्चर बनी हुई है, एक इमेज बना है, उसको देख के आपको क्या लग रहा है? उस इमेज को देखिए, उस चित्र को देखिए। क्या वो चित्र को देखकर लग रहा है कि वो कोई खेल हो रहा है? शायद नहीं, क्योंकि उस इमेज में बच्चे पेड़ के साथ नहीं है। बच्चों ने पेड़ को पकड़ा हुआ नहीं है। किसने पकड़ा है? महिलाओं ने पकड़ा है। Of course, children, in our childhood, you, I, all have played the game by hiding behind the trees. हमने आपने अपने बचपन में जरूर पेड़ के पीछे छिपने का खेल खेला होगा, लेकिन यहाँ पर तो पेड़ को पकड़कर बच्चे नहीं खड़े हैं, महिलाएं खड़ी हैं. So it cannot be a game the way they are hugging the tree. So is it related to any occasion? क्या ये किसी उत्सव या पर्व से संबंधित है? शायद नहीं, शायद नहीं बच्चों. But it is the image of collective action when man and woman both had taken part. ये जो इमेज है, जो चित्र है, बता रहा है कि उस पेड़ को पकड़ के खड़े रहने का एक कोई कारण था, which had taken place in early 1973 in उत्तराखंड. उत्तराखंड में 1973 में ऐसी घटना हुई जिसका वर्णन ये चित्र आपको कर रहा है. Now we'll come to the point, children. So this image speaks about the agitation which was done by the people. It was a protest against the permission given by the government, and the permission was for the practice of commercial logging. इस चित्र में जो आपको महिलाएं दिख रही हैं, दो महिलाओं को दिख रही हैं, आप पेड़ को पकड़कर खड़ी हैं, तो उन्होंने सरकार के द्वारा जो परमिशन दे दिया गया, खेल सामग्री बनाने वाले मैन्युफैक्चरर को अंगूर के पेड़ को काटने का परमिशन दे दिया गया, उसके विरोध में जंगल में रहने वाले लोग, आसपास के रहने वाले लोग ने उन पेड़ों को बचाने के लिए, वन संपदा को बचाने के लिए अपना प्रोटेस्ट इसी प्रकार जाहिर किया. So children, it was a act to hug the trees to prevent them from being cut down. So this protest became a world famous environmental movement which is known as चिपको movement. इस प्रकार पेड़ को पकड़ के खड़े रहने का क्या सिंबल है, क्या समझाना चाहते हैं कि वो पेड़ को कटने नहीं देंगे. और ये जो आंदोलन था वह भारत के पर्यावरण आंदोलन के रूप में, चिपको आंदोलन के रूप में जाना गया. Clear? Now we'll come to the point. The next point is point number 2, चिपको movement. Point number 2 is चिपको movement. Point number 2 है चिपको आंदोलन. Children, this began in Uttarakhand in 2 or 3 villages. What had happened, children? That time the local people had asked to get the wood from the ash trees to prepare agricultural goods. कहा जाता है कि वहां के रहने वाले स्थानीय लोगों ने वन अधिकारियों से इस बात की परमिशन मांगी कि अंगूर के पेड़ की लकड़ी को काटकर वह उससे कृषि संबंधी औजार बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें उसकी परमिशन नहीं दी गई. But children, at the same time, on the same patch of land, the permission was given to the sports manufacturers for the common use
उसी समय उन्हीं लकड़ियों को काटने की परमिशन वन क्षेत्र के अधिकारियों ने दे दिया। क्यों? खेल सामग्री के मैन्युफैक्चरर को लकड़ी काटकर खेल सामग्री बनाने के लिए। Of course, the villagers, the people, local people protested, and that protest spread across many parts of Uttarakhand. इस प्रकार वहां के स्थानीय लोगों ने इस परमिशन के विरोध में आंदोलन आरंभ कर दिया और यह आंदोलन उत्तराखंड के कई भागों में फैल गया। So they had come up with a demand. The demand was, point number 1, that they said that no forest exploiting contract should be given to outsiders, but it should be given to the community. And the community should have the control. The local community should have the control on natural resources as water, land and forest. उनका कहना था कि जो भी प्राकृतिक संपदा है, क्यों न जंगल की लकड़ी ही हो, उसका प्रयोग वहां के स्थानीय लोगों के लिए रखा जाए। किसी बाह्य व्यक्ति को, किसी बाहरी व्यक्तियों को इस पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। उनका यह भी कहना था जो हमारी प्राकृतिक संपदा है, चाहे वह जल है, चाहे भूमि है, चाहे वन है, उस पर वहां रह रहे लोगों को अधिकार दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड लो कॉस्ट मटेरियल टू स्मॉल इंडस्ट्रीज। उनका कहना था कि सरकार कम कीमत पर छोटे मोटे कुटीर उद्योगों को चलाने के लिए जिन सामान की आवश्यकता है, सरकार द्वारा उसे कम कीमत पर लोगों को उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे रोजगार के बेहतर साधन प्राप्त हो सके। The next point is that the landless forest workers, they too asked to guarantee the minimum wages. जो भूमिहीन कृषक थे, आप समझ सकते हैं कि खेती का काम करते होंगे, लेकिन उसके बदले उन्हें पारिश्रमिक मिलता होगा क्योंकि वो उनकी अपनी भूमि नहीं थी, तो ये जरूर है कि उनका शोषण किया जाता होगा। इसीलिए उनकी मांग थी कि उनका कम से कम न्यूनतम जो पारिश्रमिक है उसे सरकार द्वारा तय किया जाना चाहिए। And women played an important role to protest in other issues. महिलाओं ने न केवल वन संपदा को बचाने के लिए बल्कि अन्य भी ऐसे कोई सामाजिक मुद्दे कई थे जिसके विरोध में महिलाओं ने आवाज उठाई। Because the forest contractors of the region, they doubled up as a supply of alcohol to men. उन्होंने क्या किया? शराब की आपूर्ति का व्यवसाय शुरू किया जिसमें पुरुष लिप्त थे। For that also, the women, what did they do? They sustained against the habit of alcoholism and other social issues. महिलाओं ने शराबखोरी के विरुद्ध भी आवाज उठाई, आंदोलन किया, क्योंकि ऐसी विलासी प्रवृत्ति से, शराबखोरी से परिवार का आर्थिक जीवन अस्त व्यस्त हो रहा था। वैसे ही रोजगार के अच्छे साधन प्राप्त नहीं होते थे। एक तरफ पारिश्रमिक के लिए सरकार से गुहार की जा रही थी और वहीं जो पारिश्रमिक मिलता था वह शायद घर से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्च किया जाना चाहिए था, लेकिन वह नहीं खर्च हो रहा था क्योंकि पुरुष विलासी प्रवृत्ति में लीन होते जा रहे थे। इसलिए महिलाओं ने इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए, शराबखोरी को रोकने के लिए भी आवाज उठाई। So the protest continued. Many of the social issues had come. So what did the government do? The government banned on the felling of trees in Uttarakhand rain for 15 years. इस प्रकार जो आंदोलन था वह चलता गया। सरकार ने क्या किया? 15 वर्षों तक पेड़ की कटाई पर रोक लगा दी। Why 15 years? So that the cycling of greenery can be recovered in 15 years. So not only the Chipko movement started, which was a single issue, but it became a symbol of many other issues which were prevailing in different parts of the country in 1970s. 1970 के दशक में न केवल चिपको मूवमेंट बल्कि समाज के ऐसे बहुत से विषय थे जिसके लिए आंदोलन चलाया गया। भिन्न भिन्न सतह पर, on different levels, the movement started so that the rights can be guaranteed. Now children, we'll see to point number 2. Party-based movement. Point number 3. Point 1 was nature of popular movements. Point number 2, Chipko movement. Point number 3. Point number 3 is party
based movement. Point number 3 is party based movement, दल आधारित आंदोलन. Children, you know about the popular movement which can be in the form of social or political movement. ये जो जन आंदोलन है ये राजनीति से भी संबंधित हो सकता है और समाज से भी संबंधित हो सकता है, सामाजिक विषयों से भी संबंधित हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया. If we speak about the freedom movement of India, that was related to many of the affairs, not only the political affair, but with the political, of course it was the political affair. We revolted against the British administration, but there were other issues. So, यदि हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करें, ये सही है कि हम अंग्रेजों के हुकूमत के विरोध में थे, लेकिन उसके साथ हमारे देश में ऐसी कई समस्याएं थी, चाहे वो अर्थ से हो, आर्थिक क्षेत्र से हो या सामाजिक क्षेत्र से, शैक्षिक क्षेत्र से, किसी भी क्षेत्र से. उन सभी ने मिलकर जन आंदोलन का रूप धारण किया. So of course that was a political movement. Freedom movement was a political movement, but during colonial rule, the issues of social, the related to social field, related to economic field were also a part of this movement. For example, we had anti-caste movement, जाति विभेद था, उसके विरोध में आंदोलन किए गए. There were farmers issue for that. The किसान सभा movement had started. किसानों की बहुत सारी समस्याएं थी, इसलिए उन्होंने भी आंदोलन किया, जो कृषक किसान सभा आंदोलन के रूप में जाना गया. एंड देयर वर ट्रेड यूनियन मूवमेंट ऑल्सो. मजदूर संगठनों के द्वारा भी आंदोलन चला टिल इन अर्ली 20th centuries. 20वीं सदी के आरंभ तक ये आंदोलन चलाए गए. एंड सम ऑफ द मूवमेंट्स कंटिन्यूड इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड. कहा जाता है कि ऐसे आंदोलन थे जो आजादी के बाद भी चलते रहे. You can see to the examples. The first example is about the trade union movement. मजदूर संगठनों की ओर से जो आंदोलन चलाया गया. And that was in Mumbai, Kolkata, Kanpur. It was started by the industrial workers. क्योंकि आप जानती हैं औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ पर, तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो कारखाने में काम करने वाले लोग हैं, मिलों में काम करने वाले लोग हैं, इन्होंने इन आंदोलनों में भाग लिया. इन्होंने सरकार के विरुद्ध आवाज उठाई अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए. सो फॉर दैट मेजर पॉलिटिकल पार्टीज डेड टू एस्टेब्लिश ओन ट्रेड यूनियन फॉर मोबिलाइजिंग दीज सेक्शंस. कहा जाता है कि वहां जो राजनीतिक दल थे उन्होंने भी क्या किया कि मजदूरों को लामबंद करने के लिए अपने संगठन को और भी मजबूत करना आरंभ कर दिया. उन्होंने इन आंदोलन में भाग लेने वालों के साथ अपना कम्युनिकेशन और भी बढ़ा लिया. Point number 2 is about the peasants of Telangana, which is in Andhra Pradesh. तेलंगाना में रहने वाले कृषकों की ओर से आंदोलन चलाया गया अंडर द कम्युनिस्ट पार्टी. कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर में, उनके लीडरशिप में किसानों के द्वारा आंदोलन चलाया गया. एंड व्हाट वाज द डिमांड? द डिमांड वाज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू कल्टीवेटर्स. उनकी मांग क्या थी कि काश्तकारों के बीच जमीन का पुनर्वितरण किया जाए, जिससे उन काश्तकारों को, उन लोगों को, भूमिहीन कृषकों को भूमि मिले ताकि वे अपनी रोजी रोटी कमा सकें. कम से कम जो पारिश्रमिक उनको कम मिलता है उसके बजाय वो खुद की जमीन पर अगर खेती करेंगे तो कम से कम उन्हें खाने भर की अनाज तो मिल सकेगा. Point number 3 is the movement which was started by the peasants and agricultural laborers. किसान और खेतिहर मजदूरों के द्वारा भी आंदोलन चलाया गया. It started in आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ बिहार. यह आंदोलन आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में चलाया गया अंडर द मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट वर्कर्स विच इज नाउ नोन एज नक्सलाइट्स. किनके द्वारा? मार्क्सवादी लेनिनवादी समूह के संगठनों के द्वारा चलाया गया, जिन्हें आज हम नक्सलवादी के नाम से जानते हैं.
What was the issue? The issue was related to economic injustice. जो आर्थिक अन्याय था, एक पद पर काम करते हुए समान वेतन नहीं देना, शोषण करना, हमारी ही वेतन को काट कर अपना हित कमाना, किनके द्वारा? जो मालिक होते थे, मिल मालिक होते थे, वे लोगों को उचित पारिश्रमिक नहीं देते थे। और इनइक्वालिटी, असमानता, भेदभाव, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे रंग के आधार पर हो, चाहे उनका अपना कोई व्यक्तिगत मामला हो, हर क्षेत्र में असमानताएं व्याप्त थी। इस परिपेक्ष में भी आंदोलन चलाया गया। So children, these movements, the people, those who led these movements, they did not participate in the elections. इन लोगों ने क्या किया? इन्होंने चुनाव के क्षेत्र में भाग नहीं लिया, राजनीतिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप में भाग नहीं लिया। बट व्हाट डिड दे डू? दे रिमेन कनेक्टेड विद पॉलिटिकल पार्टीज। इन्होंने राजनीतिक दलों के साथ अपने संबंध अच्छे बनाए रखे एंड एंश्योर्ड बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड्स ऑफ डाइवर्स सोशल सिस्टम इन पार्टी पॉलिटिक्स। इन्होंने क्या किया कि अपने रिश्ते, अपने संबंध राजनीतिक दलों के साथ, उनके प्रतिनिधियों के साथ बेहतर बनाए रखा, जिससे समाज में जो समस्याएं हैं उनके उन्मूलन में उन प्रतिनिधियों के द्वारा इन्हें सहयोग मिल सके। क्योंकि ये हर प्रतिनिधि जानता है कि उस जनता का यदि सपोर्ट चाहिए, यदि उसे मत चाहिए, तो उसे जनहित में काम करना है। इसलिए प्रतिनिधि भी इस बात के लिए बहुत अवेयर रहते थे कि समाज में जो ये इस प्रकार की समस्याएं हैं उनका उन्मूलन किया जाए। Followed children? Okay बेटा, thank you class, have a nice day.